Very good. Very good. Only notebook should be in front of you, nothing else. Notebook and pen in your hand. All right. Everybody look straight. You know, I am holding something in my hand. See carefully. Everybody look straight. I am holding something in my hand. Look at the figure carefully. Look at the object carefully. What kind of object is this? Assignments we are not going to start today. Assignment we can give later. Ma'am, assignment abhi रहने दो. We are not doing assignment today. Everybody, we are going to do introduction of the chapter. We are going to do important things in the chapter. ठीक है? कोई module आपके साथ नहीं है. Only pen and notebook should be with you. Yeah, can you see an object in my hand? I am holding something. See carefully. ध्यान से इसको देखो. At present, I have this object with me, right? Do you also have? आपके पास कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है अभी? आपका टिफिन बॉक्स हो, मे बी आपका कुछ बुक हो इस टाइप की, या फिर नोटबुक हो. डू यू हैव? अगर है तो निकाल लो अपने सामने. Have tiffin box with you? With the bag? Do you have pencil box of this kind? इसी शेप का हो. I don't know what is the name of this shape, but I'm giving you the clue कि इस शेप का होना चाहिए कोई ऑब्जेक्ट. आपके बैग में हो, बुक हो आपके पास इस शेप की, आपके पास पेंसिल बॉक्स हो, आपका टिफिन बॉक्स हो, व्हाटएवर. वेरी गुड. और होगा. यस, वेरी गुड. लुक एट दिस. एवरीबडी टेक इट आउट. ठीक है? ये नहीं कि एक पार्टनर ने निकाल लिया और दूसरा अभी यू आर शेयरिंग विद दैट. ओके, रेज योर हैंड. सबने निकाल लिया अपने सामने. ओके, फ्रॉम ए सेक्शन. First girl, beta, come forward. Can you tell me the name of this object? What do we call it? Yes, mic on karo. Cuboid. Everybody knows this shape is called cuboid. सबको पता है? Raise your hand. सबके पास cuboid है अभी at present. आपने पकड़ा हुआ है. Very good, hands down. Okay. तो now tell me क्या क्या objects हैं आपके पास? कोई examples बताओ. F section से. F section से कोई भी बच्चा आगे आके बताया कि मेरे पास ये object है cuboid shape में. Anybody? Very good. थोड़ा fast आओ. I will call from every section. Be ready. किसी एक बच्चे ने आके मेरे को बताना है कि yes मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है. अपने आप से रेडी रहना. From F section, yes बेटा. Very good. जल्दी से आ जाओ. E section. E section. माइक ऑन करके जल्दी से बता दो. What are you carrying? आपके पास क्या चीज है, ऐसी चीज जो मेरी शेप से मिल रही है? Pencil box. Okay, good. B section. What is with you? सबके पास ही होगा पेंसिल बॉक्स. काफी रेक्टेंगुलर इसी शेप में ही आता है जो शेप मेरे पास है. Notebook. Yes. D section. D section. आपने बताया मेरे को नोटबुक है आपके पास, पेंसिल बॉक्स है, और क्या है बेटा? From D section, बच्चे, what is with you? Ma'am, lunch box. Lunch box. Very good. Please sit down. Lunch box. अपने रूम में आसपास देखो, आपको कुछ ऐसी चीज दिख रही हो. ये तो आपने अपने बैग से निकाला. It is individually with you. Look around you. Look around the classroom. आसपास देखो क्या दिख रहा है आपको इस शेप का.
Can you see the room in which you are sitting? Your classroom? Your classroom is there, right? So these are all shapes. जो आपको example आपने बताए, इनका name है cuboid. You know, first child told me कि I have the shape with me is cuboid. ठीक है, आपने recognize कर लिया कि उसका cuboid है. अब cuboid में ये कैसी shape है? 2D है या फिर 3D है? 3D. 3D, yes, you know, this is 3D shape. Why we call it 3D shape? Reason क्या है? Why we call it 3D? We can see its all sides. We can see it all sides. Okay. It is three-dimensional. This is three dimensional. Yes. तो इसका रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन है कि आपने बोला कि वी कैन सी ऑल द सर्फेसिस. इनको बोलते हैं सर्फेसिस. वी कैन सी सर्फेसिस, ऑल सर्फेसिस वी कैन सी. किसके टॉप पे क्या है, बॉटम पे क्या है, लेफ्ट साइड पे क्या है, कौन सा फेस है, राइट पे कौन सा फेस है, फ्रंट पे कौन सा फेस है और बैक पे कौन सा. यू कैन सी ऑल द फेस. ठीक है. सेकेंड थिंग इज व्हाट? इट ऑक्यूपाइज स्पेस. ऑक्यूपाइज स्पेस इसका मतलब कि इसके अंदर कुछ हम डाल सकते हैं. आपका पेंसिल बॉक्स है, यस, उसमें आपने कुछ डाला हुआ है, बॉक्स है, ठीक है. लंच बॉक्स है, यस. आपका क्लासरूम है, so many children are sitting, so many benches are lying. So it is something. 3D shape means कि it contains something. It can be liquid, it can be solid, it can be like you, number of children sitting in a room. Okay, so these are cuboidal shape. Now, give me more examples of like, suppose I ask you in notebook. Notebook, what it contains? इसमें क्या क्या आएगा? Pages. How will we come to know कि notebook का कैसे उसका वॉल्यूम कैसे देखेंगे, उसकी वो कैसे देखेंगे कि सरफेस एरिया तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी बैक पे क्या है, फ्रंट पे क्या है, टॉप पे क्या है, बॉटम पे क्या है, अगर आपने इसको कवर करना है, राइट. नोटबुक को अगर आपने कवर चढ़ाना है इसके ऊपर, इसको पैक करना है, गिफ्ट पैक करना है, तो यू विल कवर ऑल द फेसेस ना. सारे फेसेस को कवर करोगे. इसके केस में आप क्या यूज करोगे? सरफेस एरिया उसका यूज करोगे, राइट. एंड अदरवाइज नंबर ऑफ पेजेस काउंट करने के लिए कि नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं इसके अंदर, नोटबुक के अंदर, Area. उसके लिए आप काउंट करोगे उसका एरिया. ठीक है. क्योंकि आपकी जो वॉल्यूम होता है दैट इज जनरली फाउंड इन केजी, ग्राम्स, लीटर्स, मिलीलीटर्स एंड सो ऑन. इस फॉर्म में फाइंड आउट होता है. ठीक है. नाउ आपने बुक में पढ़ा होगा, कहीं कहीं हम वॉल्यूम वर्ड यूज करते हैं, कहीं कहीं हम कैपेसिटी यूज करते हैं वर्ड. क्या ये दोनों वर्ड डिफरेंट है, कैपेसिटी एंड वॉल्यूम? आर दे डिफरेंट? दे आर कंसीडर्ड एज सेम ओनली. ठीक है. डिफरेंस उनमें ज्यादा नहीं है, कहीं कहीं फॉर्मूला सेम. ठीक है. लेकिन बोलने में भी सी देम दे आर डिफरेंट, और उनका यूसेज जो है वो अलग अलग है. हाउ? पहले इसका डिफरेंस लिख लो. लेट अस राइट डाउन. एक साइड पे लिखो वॉल्यूम क्या है और दूसरी साइड पे लिखो कैपेसिटी क्या है, ताकि आपको ये पता चले कि कहाँ पे कौन सी चीज यूज करें. चैप्टर तो आपने किया हुआ है क्लास में. नाउ यू लर्न इट इन डीप कि वॉल्यूम और कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है. ठीक है. लेट अस टॉक अबाउट अ कंटेनर. तो इसका फर्स्ट डिफरेंस क्या है? अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय, amount of space occupied by a container. कोई भी कंटेनर है आपके पास, कोई भी कंटेनर है, उसके अंदर कितनी स्पेस है उसको हम बोलेंगे उसका वॉल्यूम. ठीक है. सेम थिंग
कैपेसिटी में भी थोड़ी वर्डिंग डिफरेंट है, उसमें है कि एबिलिटी ऑफ होल्डिंग, एबिलिटी ऑफ होल्डिंग व्हाट, लिक्विड हो सकता है, उसमें कितना लिक्विड आ सकता है, मे बी वाटर, मे बी ऑयल, राइट, लिक्विड, सॉलिड और गैस, और गैस, ability of holding a liquid, solid or gas by the container, by the container। अब मैं आपको इसलिए लिखवा रही हूँ तो ये पर्टिकुलर वर्ड कई बार जैसे आप पजल में, क्रॉसवर्ड में फिल करते हो, तो यू शुड नो कि इनका वर्डिंग कैसे डिफरेंट है, किसको वॉल्यूम बोलेंगे, किसको कैपेसिटी बोलेंगे, फॉर्मूला इज सेम, डोंट वरी, ये ऐसा नहीं कुछ और ही नई चीज आ रही है आपके पास। किसी की कैपेसिटी हमने निकालनी है तो भी फॉर्मूला विल बी सेम, इफ यू आर फाइंडिंग वॉल्यूम देन आल्सो फॉर्मूला विल बी सेम। ठीक है, सपोज आई ड्रॉ कंटेनर, यहाँ पे मैंने एक बकेट ड्रॉ, ठीक है, आई एम ड्रॉइंग अ बकेट ओवर हियर। मैं बकेट की अगर बात करती हूँ तो आई विल टॉक अबाउट कि अमाउंट ऑफ स्पेस, कितनी स्पेस है इसमें, लिक्विड इसमें डाला है आपने, ठीक है, वो आएगा आपका, कितनी स्पेस है इन द बकेट, वो आ जाएगा वॉल्यूम, और एबिलिटी ऑफ होल्डिंग अ लिक्विड, गैस और सॉलिड इन अ कंटेनर तो हम बोलेंगे उसकी कैपेसिटी कितनी है बकेट की, ठीक है। अब इसमें जो वॉल्यूम है हम जनरली यूज करते हैं यूनिट्स, यूनिट्स तो आपको पता है कि ये पूरे के पूरे चैप्टर्स में यूज होते हैं। वट एवर डायमेंशन आपने पहले भी देखा था, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, कहां भी आप यूज करते हो विदाउट यूनिट वो नहीं लिखे जाते। सेम वे 3D शेप्स जो हैं वहां भी यूनिट्स आर मस्ट, ठीक है। इसमें यूनिट्स क्या होते हैं, आर मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। जैसे आपने किसी की वो निकालना है कि कितना क्यूबॉइड के अंदर कितनी स्पेस है, कितना वॉल्यूम इसमें आ सकता है, तो आप निकालोगे मीटर क्यूब में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका क्या यूनिट दी हुई है, ठीक है। लेकिन कैपेसिटी की बात अगर हम करें जनरली, उसमें क्या होता है, लीटर्स और मिलीलीटर्स, इसमें हम यूनिट्स की बात करते हैं, लीटर्स और क्वेश्चन में देखोगे व्हेन यू विल सी द क्वेश्चन, कभी कभी आपको जब लिक्विड की बात हो रही है दे विल टॉक अबाउट कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस कंटेनर, हाउ मच ऑयल इट कैन कंटेन, फाइंड इन लीटर्स, फाइंड इन मिलीलीटर्स। तो यू शुड नो कि हम इसमें लिक्विड की बात कर रहे हैं तो हमें कैसे वो रिलेट, ठीक है। प्लीज रिमेंबर बेटा, यहाँ पे आपको पता है जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 आप सेंटीमीटर यूज करते हो यूनिट, ओल्ड वाला, कुछ नया नहीं है ये, आपको पता है मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सेम थिंग वी विल टॉक अबाउट मीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब है, इन्हीं का ही क्यूब, यहाँ भी क्यूब हो जाएगा, यहाँ भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। वी विल डू इन द क्वेश्चन सेम वे, 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच, यू नो द रिलेशन, 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर्स, 1000। प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है, ये आप साइंस में भी यूज करते हो और मैथ्स में तो बहुत ही ज्यादा अभी यूज होने वाला है इस चैप्टर में स्पेशली, ठीक है। ओके, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, राइट डाउन फॉर एग्जांपल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको दिया हुआ है, मान लो आपने कैलकुलेट किया 380 मीटर क्यूब, सपोज आपने कैलकुलेट करके बताया कि सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब तो बहुत बड़ा हो जाएगा, सो इट इज सेंटीमीटर क्यूब, 380 सेंटीमीटर क्यूब किसी का वॉल्यूम निकाला आपने सिलेंडर का, ठीक है। तो उसी की कैपेसिटी क्या होगी, राइट डाउन, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर क्या होगी, विल बी इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब की बात हो रही है, इज इक्वल टू बाय 1000 लीटर्स, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिट जो है वो लीटर्स में लिखनी थी।
यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में है उसका यूनिट, और यहाँ पे हमारे पास है लीटर्स में। उसको कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा क्योंकि हम उसकी कैपेसिटी निकालते हैं। ठीक है, हैव यू रेड अबाउट सिलेंडर इन द क्लास? Yes. यस, यू नो दिस काइंड ऑफ शेप। ठीक है, सिलेंडर, आपके पास बॉटल है, वाटर बॉटल इज विद यू, उसमें आप देखते हो सर्फेसेस होते हैं। तो अभी हम सिर्फ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, सर्फेसेस की मैं अभी बताऊंगी। तो ये वॉल्यूम के केस में यू शुड नो कि वॉल्यूम को कैसे हम वर्ड को यूज करें और कैपेसिटी को कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, सो दिस इज द मेन डिफरेंस, बट फॉर्मूला विल रिमेन सेम, ओनली कैलकुलेशन में आपको चेंजेस आएंगे। ओके, नाउ आवाज क्यों आ रही है? suppose you have read these all names, you have read about cuboid, अभी अभी आपने देख लिया। ठीक है, then you have read about cube also। cubical shape कैसी होती है? cubical shape, Shape of dice. yeah, shape of dice, very good, it is like this, all the faces are squares, it is, they are all equal, you can see, कहीं से कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है। और जब आपने क्यूबॉइड देखा था, यू कुड सी ऑल द फेसेस आर रेक्टेंगल्स, आपके पास बुक है, यू कैन सी ऑल द फेसेस आर रेक्टेंगल। कोई भी फेस आप देखोगे, किसी में ब्रेड्थ उसकी छोटी है, किसी में लेंथ जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इट इज ऑफ दिस काइंड। सो नेक्स्ट यू हैव रेड अबाउट सिलेंडर। ठीक है, एक बार प्रॉपर शेप्स को देख लो, देन वी विल राइट ऑल द फॉर्मूलाज। सिलेंडर, क्यूब का कोई और एग्जांपल बताओगे बेटा? केक बॉक्स, when you buy cake from the market या फिर पेस्ट्री बाय करते हो, they give you this kind of box, cubical होता है ना बॉक्स। ठीक है, जनरली cubical होता है, it could be cuboid also। and what about cylinder? Cylinder में you can see this bottle shape, right? it is so thick, can you see? आपको देखने से ही लग रहा है कि इसमें कुछ ऑब्जेक्ट डाला जा सकता है, राइट? ये बेस है इसका, ये पूरा कंटेनर है, अगर ये ऊपर से खाली हो तो फिर क्या होगा? यू कैन पुट समथिंग इन दिस, इट कुड बी लिक्विड, Cans. cold drink can, yes, this okay example, yeah, more, Paint buckets. yes, there's so many examples from the real life, you see। okay, when you see in the kitchen, अभी आज किचन में जाना जरा, you see मम्मा के पास कैसे कैसे कंटेनर्स हैं, she would be carrying so many kind of containers, कुछ आपके स्टील के होंगे, कुछ प्लास्टिक के, कुछ ग्लास के, यू विल सी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। और आपने देखे भी हुए हैं, इट इज नॉट दैट कि दिस इज न्यू फॉर यू, आपने देखा भी हुआ है, राइट? So these are the containers. Now I want to ask you two things. अब इसमें we are talking about, आपने भी अपनी क्लास में किया हुआ है कि सरफेस एरिया की बात करते हैं, कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया और एलएस से एक ही बात होती है। देन वी टॉक अबाउट वॉल्यूम ऑल्सो, ये तीन चीजों की बात होती है आपकी चैप्टर में। ठीक है, अब आई वांट टू आस्क यू कि सरफेस एरिया का क्या मतलब है, सीएसए का क्या मतलब है, और वॉल्यूम का क्या मतलब है। इफ आई शो यू दिस, सपोज मेरे पास जो हाँ जी बेटा, यू वांट टू से मी एनीथिंग, ई सेक्शन माइक ऑन किया था आपने? हाँ जी, एरिया में हम बाहर वाला एरिया कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम में उसकी कैपेसिटी देखते हैं कि वो कितना, वॉल्यूम की कैपेसिटी देखते हैं, और इसमें क्या देखते हैं, सीएसए एलएसए में क्या देखते हैं बेटा? और साइड्स का सरफेस एरिया। साइड्स का सब। ओके, नाउ सपोज यू हैव दिस क्यूबॉइड विद यू, ध्यान से इसको देख लो पहले। क्यूबॉइड एक बॉक्स है, एक मेरे पास आई बॉट समथिंग, सम बॉक्स फ्रॉम द मार्केट, आई वांट टू गिफ्ट इट टू माय फ्रेंड, तो मैं इसको रैप करूंगी। ठीक है, रैपिंग जो करूंगी, आई विल डू फ्रॉम टॉप ऑल्सो, फ्रॉम द साइड्स ऑल्सो, आई विल कवर ऑल द फेसेस। गिफ्ट रैप लगाते हो ना आप? ठीक है, तो गिफ्ट रैप लगाने के लिए आई विल बी कवरिंग ऑल द फेसेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। जो मेरे पास गिफ्ट है उसके मैं सारे फेसेस को कवर करूंगी। तो वो जो सारे फेसेस हैं उसमें क्या क्या आएगा? फर्स्ट वाला, फ्रंट वाला रेक्टेंगल आएगा,
बैक साइड वाला रेक्टेंगल आएगा, टॉप वाला रेक्टेंगल, नीचे वाला रेक्टेंगल, लेफ्ट वाला रेक्टेंगल और राइट वाला रेक्टेंगल, सारे के सारे अगर कहीं से खुला होगा तो इट विल नॉट लुक गुड, राइट। तो गिफ्ट रैप करने के लिए आप जो सब कुछ उसको कवर करोगे, कोई भी फेस उसका नहीं बचेगा, दैट इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। पहले नेम देख लो कि उसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीएसए भी लिखते हैं, आपने बुक्स में भी देखा होगा, कई बार आपकी क्लास में भी मे बी मैम अगर अलाउ करेंगे यू कैन राइट टीएसए ऑल्सो, कई बार स्टूडेंट्स लिखते हैं टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, टीएसए ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ सिलेंडर, दिस दैट, ओके। So this is a short form of that. Then second is curved surface area. Curved surface area मैं अभी short form में लिख रही हूँ, और आपका आता है lateral surface area, ठीक है, आपको नेम पता होने चाहिए। lateral surface area और curved surface area सेम ही होते हैं, they are lateral. Lateral means उसकी surrounding surface area. CSA और SA, LSA, they are same. It means we are talking about only the surrounding. For example, you have cylinder with you. सिलेंडर के टॉप पे एक सर्कल है, नीचे भी एक सर्कल है, दिख रहा है आपको, नीचे भी सर्कल है, ऊपर भी सर्कल है। अगर मेरे को इसके सराउंड से कवर करना है, ओनली इसके आसपास, ठीक है, टॉप और बॉटम को छोड़ के, सपोज ये खाली है, ऊपर से कवर नहीं, ठीक है, आप मैंने इसको जस्ट कवर करना है या पेपर लगाना है इसके आसपास, तो व्हाट वुड आई डू, आई एम यूजिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया, जो कि कर्व हो रहा है, ठीक है। मान लो मेरे पास पेपर है, आई एम फोल्डिंग दिस पेपर इन दिस फॉर्म, मैंने पेपर को ऐसे फोल्ड कर लिया, कैन यू सी कि ये सिलेंड्रिकल तो बन गया, इसके नीचे भी खाली है और ऊपर भी खाली है, तो मेरे को सिर्फ सराउंडिंग पे देखना है कि मैंने कितना पेपर यूज किया टू मेक दिस शेप, राइट। So this paper which I have to use to make the shape of this cylinder, तो उसमें भी ये क्या यूज करूंगी, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हो, रैपिंग ऑफ अ गिफ्ट, रैपिंग गिफ्ट हो गया आपका, जिसमें आप टीएसए यूज कर रहे हो, और किसके लिए यूज करोगे, टीएसए की बात करेंगे तो कोई डिजाइन बनाना है, आपने पेंट करना है, पेंटिंग और यू नो बॉक्स, पेंट को बॉक्स को जब पेंट करोगे तो पूरा का पूरा ही पेंट करोगे ना, उसका टीएसए यूज कर रहे हो। सीएसए के लिए क्या यूज कर रहे हो, एग्जांपल, यूजिंग पेपर टू मेक सिलेंडर, ठीक है, आपने क्या किया, सिलेंडर बनाने के लिए पेपर यूज किया, तो पेपर को जब फोल्ड किया, पेपर पहले क्या था, पहले एक रेक्टेंगल था, आपके सारे मेंसुरेशन के चैप्टर में बेटा ऐसी चीजें यूज हो रही है कि कन्वर्ट कैसे कर रहे हो वन शेप टू अनदर शेप। सपोज मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है ऐसे, इसको मैंने, रेक्टेंगल को मैंने सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। तो हमारा क्या, मैंने क्या किया, पेपर, यूजिंग पेपर टू मेक अ सिलेंडर, सिलिंड्रिकल शेप, वो अंडरस्टूड है कि आप जब पेपर यूज कर रहे हो तो उसके टॉप एंड बॉटम पे वी आर नॉट यूजिंग सर्कल्स, उनको कवर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम सीएसए की बात कर रहे हैं, ठीक है। फाइन, नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट वॉल्यूम। वॉल्यूम के हमने एग्जांपल आपको दे दिए। वॉल्यूम का क्या मतलब है कि कितना लिक्विड होल्ड कर सकता है, हाउ मच ग्रास और हाउ मच liquid can be put in a bottle, चाहे वो ऑयल है, चाहे कुछ और है, वाटर है, whatever, ठीक है। देयर आर many more examples, अब आप क्वेश्चंस करोगे ना, you will come to know more examples of this kind, ठीक है।
Let us write down few the list of these formulas कि कहाँ पे आप क्या क्या यूज करते हो और वो फॉर्मूला बना कैसे है। रट्टा नहीं लगाना कि हाँ यहाँ पे हमने एल लिखना है, यहाँ पे बी लिखना है, यहाँ पे एच लिखना है, इसको इससे डिवाइड करना है, उसको इससे। नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिगर, यू हैव टू विजुअलाइज द थिंग कि किसके बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, लेट अस ड्रॉ फिगर। सबको क्यूबॉइड बनाना आता है? here first of all we are talking about cuboid। पहले हम cuboid की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसको नहीं आता दे कैन सी here how to make it। पहले एक रेक्टेंगल बनाओ, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाना, उसके अंदर एक और रेक्टेंगल बनाओ ऑफ सेम साइज, ताकि उसकी फेसेस सेम हो जाए। इट्स वेरी इजी टू मेक, एवरीबody ड्रॉ इट, क्योंकि आपको डायमेंशंस भी लिखनी है, फिगर को बार बार देखोगे बिफोर राइटिंग द फॉर्मूलाज। ठीक है, यू कैन सी हियर दीज आर द लेंथ्स। पहले सारी लेंथ्स लिख लो कि लेंथ्स कौन कौन सी है आपके पास। पूरे के पूरे रेक्टेंगल में, पूरे के पूरे जो आपके रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं, रेक्टेंगुलर फेसेस दिख रहे हैं, उनके अंदर एल कहाँ कहाँ पे है। सिर्फ एल को लिखो अभी। लिख लिया? एवरीबडी रोट इट? You can see L is used at the front here, back वाला bottom, similarly up front and back front। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? ये वाले फेस की बात कर रहे हैं। जब हमने L लिखा, we are talking about only this face, L, L, similarly at the back L and L। ठीक है, now next is we are talking about breadth कि breadth कहाँ कहाँ दिख रही है आपको। down, breadth is here, यहाँ दिख रही है आपको, यहाँ पे दिख रही है breadth, और यहाँ पे। You also write down in your figure। 4 आपके पास L आ चुके हैं और 4 आपके पास B आ चुके हैं, which is showing the breadth। Now we are talking about H, height कहाँ कहाँ पे दिख रही है आपके पास। जो ऑब्जेक्ट है that also you can see, you know आपकी जैसे ऑब्जेक्ट है, ये हाइट कहाँ पे दिख रही है कि उसकी मोटापा कितना है, कितना मोटा ये बॉक्स है। ये आपकी हाइट है 1 2 3 4। कितनी ऊंचा है बॉक्स का, कितना स्पेस है, कितनी हाइट है। जितनी हाइट होगी उतनी ज्यादा उसमें स्पेस आएगी। दैट यू अंडरस्टैंड ना? तो उसकी हाइट कितनी है, तो हाइट कहाँ कहाँ पे है आपकी फिगर में, कहाँ कहाँ है? राइट डाउन, दिस इज हाइट h, दिस इज h, दिस इज h, एंड वन मोर एट द बैक। Okay, now you have 4L and 4B and 4H। L is length, B is breadth, H is height। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखो फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे क्यूबॉइड के हम सारे पॉइंट्स लिखने वाले हैं, साथ साथ आपने फिगर देखते रहना है आपने। ठीक है, क्यूबॉइड हैज, ये आपके बहुत काम आएंगे, पूरी लिस्ट बनाओ। You will be using till your 10th classes in school। Cuboid has 6 faces, 6 faces, और साथ साथ में फिगर देखते रहो। कैन यू सी 6 faces? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ना तो 6 से ज्यादा है ना फिर 6 से कम है। और सारे के सारे जो फेसेस हैं, व्हाट आर दे आर रेक्टेंगल्स। लिख लो यहाँ पे, यू नो इट बट यू हैव टू राइट इट सो दैट जब आप कैलकुलेशन करोगे तब आपकी मिस्टेक ना हो, क्योंकि हमने रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, देन राइट डाउन सेकंड वन, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। You know we are talking about only top and bottom। आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी देख लो, टॉप एंड बॉटम की बात कर रहे हैं। एरियाज ऑफ टॉप एंड बॉटम की बात कर रहे हैं। टॉप एंड बॉटम में आपको क्या क्या दिख रहा है? टॉप एंड बॉटम, मैंने ये पकड़ लिया, अपना क्यूबॉइड पकड़ लिया।
टॉप पे भी एक रेक्टेंगल है और डाउन भी एक रेक्टेंगल है, बॉटम पे भी रेक्टेंगल है। टॉप पे क्या क्या है? एल एंड बी, एल एंड बी। टॉप एंड बॉटम में क्या आपको हाइट दिख रही है? अगर हम सिर्फ टॉप और बॉटम की बात करें तो दे आर सेपरेट, यू नो। सिर्फ टॉप की बात कर रहे हैं, हमने टॉप पे पेंट करना है या फिर बॉटम पे पेंट करना है। सो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ओनली एल एंड बी। हाइट नहीं यहाँ पे यूज होगी आपकी, ठीक है। तो आपके क्या यूज होगा यहाँ पे? एल एल बी प्लस एल बी। ऊपर रेक्टेंगल है, नीचे भी रेक्टेंगल है। ऊपर जो रेक्टेंगल है उसका फॉर्मूला क्या है? एल इंटू बी एरिया। नीचे जो रेक्टेंगल है उसका भी एरिया एल इंटू बी है। सो बोथ आर एडेड टू बिकम 2LB। ठीक है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड वन, एरियाज ऑफ बैक एंड फ्रंट। बैक एंड फ्रंट, ध्यान से फिगर को देखते रहो। पीछे और आगे कौन कौन सी डायमेंशंस यूज हो रही हैं आपकी बैक और फ्रंट पे? कैन यू सी? फ्रंट साइड पे अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो सिर्फ मेरे को एल और एच दिख रहा है। कैन यू सी हियर? आई एम डार्किंग इट ओवर हियर, यू आल्सो डार्कन इट विद योर पेन। उसको चेक करो जरा। अगर आप फ्रंट की बात करो, फ्रंट और बैक की, तो फ्रंट पे आपको सिर्फ एल और एच दिख रहा है, बी तो नहीं दिख रहा। हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। सिमिलरली बैक साइड पे भी रेक्टेंगल है, तो उसमें हमारे पास क्या यूज होगा? एल एच प्लस एल एच, इट इज इक्वल टू 2LH। ध्यान से, राइटिंग शुड बी नीट ताकि आपको बाद में समझ आ सके। कईयों का एल और एच में डिफरेंस नहीं पता चलता है व्हेन दे राइट, सो बी केयरफुल। स्मॉल लेटर से लिखो लेकिन नीटली लिखो। बैक एंड फ्रंट हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, एरियाज ऑफ राइट एंड लेफ्ट। राइट एंड लेफ्ट, यू टेल मी बाय सीइंग कि राइट एंड लेफ्ट में क्या क्या दिख रहा है आपको? लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। अगर मैं ये उठाया, मैंने ये मेरे पास बॉक्स था, इसके लेफ्ट और राइट पे क्या क्या है? मैम ब्रेड्थ एंड हाइट। ब्रेड्थ एंड हाइट। ओके, आपको दिख रहा है यहाँ पे बी एंड एच दिख रहा है, तो इट इज BH प्लस BH इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BH। आपने पूरे के पूरे 3D शेप्स को खोल के देख लिया कि ये रेक्टेंगल है और तो हम क्या फॉर्मूला लिख रहे हैं। इस लेफ्ट वाला रेक्टेंगल है तो हम क्या फॉर्मूला लिख रहे हैं, टॉप वाला है तो हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे। तो यू हैव टू सी 3D शेप को आपने ड्रॉ करके, विजुअलाइज करके उसकी डायमेंशन लिख। ओके, बाय फॉर्मूला मैंने ये तोड़ के इसलिए लिखा ताकि आपको पता चले कि कहां से ये 2LB, कहां से 2HL और कहां से हमारे पास 2BH आया है। ओके, नाउ राइट डाउन फिफ्थ पॉइंट, TSA ऑफ क्यूबॉइड। TSA सबको समझ आ गया है? व्हाट इज दैट? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, सारे के सारे सरफेस एरिया जो हमने लिखे हैं, टॉप बॉटम बैक फ्रंट लेफ्ट राइट, सबको हमने प्लस कर देना है। वो फॉर्मूला आपने क्लास में भी किया हुआ है एंड यू हैव कम टू नो कि हाउ दिस फॉर्मूला हैज कम। 2LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका बना टोटल सरफेस एरिया। 2 हमने कॉमन निकाल लिया बिकॉज इट इज कमिंग विद एवरी एरिया। जो जो आपने पेयर्स में लिखे हैं सबके साथ 2 2 2 2 2 आ रहा है, तो हमने 2 को बाहर निकाल लिया। ये फॉर्मूला आपको काफी क्वेश्चंस में आपने यूज किया होगा, बुक में क्लास में यूज किया होगा एंड यू हैव कम टू नो हाउ दिस फॉर्मूला हैज कम। कभी कभी आपके क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें पूरा फॉर्मूला TSA नहीं यूज होता। समटाइम जैसे कि यू हैव टू पेंट द 4 वॉल्स ऑफ योर रूम, you have to paint the whole box excluding the top। ठीक है, तो आपको फिर पता होना चाहिए कि आप किसको बाहर निकाल रहे हैं। 6 के जो 6 स्पेसेस थे आपके क्यूबॉइड के, उनमें से कौन सी चीज को हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, रेस्ट ऑल विल रिमेन सेम।
नेक्स्ट फॉर्मूला बेटा, राइट डाउन CSA और LSA। आप कुछ भी लिख सकते हो इसको। लेटर सरफेस एरिया कभी कभी आप क्वेश्चंस में देखते हो और कभी कभी देखते हो कर्व सरफेस एरिया, दोनों सेम है। आई टोल्ड यू CSA वर्ड क्या है, CSA ऑफ क्यूबॉइड, सिर्फ उसकी कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये क्या आ रहा है आपके पास, 2BH प्लस LH। क्यों आ रहा है ये, कहां पे मिस हो गया वो एक LSA वाला, ये TSA में से क्या मिस किया हमने, लेंथ और ब्रेड्थ हमने मिस कर दिया, इसको मिस कर दिया, क्योंकि हम उसकी सराउंडिंग की बात कर रहे हैं। जब हम सराउंडिंग की बात कर रहे हैं तो हमने क्या किया, टॉप और बॉटम को छोड़ दिया। ठीक है, बॉक्स को चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, सेम ही मीनिंग है, होल्डिंग की कोई बात नहीं है। थिंग इज कि आपको ये पता चल गया कि हमने टॉप और बॉटम को छोड़ दिया, तो उसके सराउंडिंग पे जो हमने काम किया, पेंट किया या फिर उसको कवर किया, वट तो वो उसका आ गया CSA, उसकी सराउंडिंग की बात हो रही है। ठीक है, सो दैट एरिया विल बी यूज्ड एज LB, उसमें से माइनस हो जाएगा, सो दिस विल रिमेन एज इट इज। ठीक है, एंड लास्ट फॉर्मूला इज विद यू, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम को कैसे यूज करोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसी का ही फॉर द सेम फिगर वी आर राइटिंग ऑल द पार्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सो वॉल्यूम में वी आर कंसीडरिंग LBH, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, उसमें कितनी स्पेस है। If we are talking about a box, it is equal to area of base, area of base, you know, जब भी हम इसमें चीज डालेंगे क्यूबिकल बॉक्स में, क्यूबॉइडल बॉक्स में, जब भी हम कोई चीज डालेंगे सबसे पहले तो उसका बेस यूज होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि वो हवा में उड़ेगी। ठीक है, तो इट विल ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ बेस फर्स्ट, फिर वो हाइट कितनी लेती है, इट डिपेंड्स कि पूरा भरा हुआ है या फिर आधा भरा हुआ है। ठीक है, हाइट कम है तो वी विल से लेस थिंग इन दैट, हाइट ज्यादा है तो वी विल से इट इज कवर्ड मोर। तो बेस तो उसका कवर होना ही है जब भी कोई चीज इसमें डालोगे, सो दैट्स व्हाई इट इज एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, प्लीज राइट डाउन area of base into H. What is area of base, you tell me now, we are talking about area of base, area of base क्या होना चाहिए, length into breadth. length into breadth, so it is L into B into H। आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला बना कैसे है। Okay? So this is the way we will go। ठीक है, अभी आपने क्यूबॉइड के ये लिखे, उसके बाद we will write more about that। ठीक है, आपका टाइम हो गया बेटी कि अभी है और मैम 5 minutes है left। ओके ओके, ठीक है ऑल राइट, वी कैन राइट अबाउट क्यूब, क्यूब आल्सो, यू नो बेटा क्यूब का भी सब कुछ सेम है, सिर्फ उसमें क्या डिफरेंस आएगा, कैन यू टेल मी, क्वाड्रेट और क्यूब में क्या डिफरेंस आएगा, ऑल उसमें LBH तीनों के तीनों सेम हो, so this is very simple, please write down about that also। Write down cube, draw a picture, very nice, you know how to do it, cube everybody knows, you have to draw two squares, okay, into each other, they are crossing each other so that you can make it into 3D shape। See, I'm not using any scale, you can also draw with the free hand। ठीक है, आपकी तो नोटबुक में लाइंस भी बनी हुई है, यू कैन ड्रॉ इट मोर स्मार्टली, 4 या 5 लाइंस या फिर 3 लाइंस में भी बहुत अच्छा क्यूब बन सकता है आपका। ठीक है, जिसमें आप डायमेंशंस भी लिख पाओ, ये नहीं कि सिर्फ ड्रॉ ही करना है, व्हेन यू विल बी डूइंग क्वेश्चन यू हैव टू राइट द डायमेंशंस आल्सो, कितनी आपको लेंथ दी हुई है या फिर उसकी यूनिट लिखनी होती है, सेंटीमीटर है, मीटर है। ठीक है, सो ऑल आर L, यू कैन राइट डाउन हियर, you can write down L over here every row,
क्योंकि ये ऑल जो है वो सेम है। वी नीड नॉट राइट ऑल द फेसेस, सारे को एल 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 लिखने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता चल रहा है कि हाइट भी एल है उसकी और बेस भी एल है। ठीक है, राइट डाउन पॉइंट। क्यूब हैज 6 स्क्वायर फेसेस। आपको पता चल रहा है सारे फेसेस जो है वो स्क्वायर शेप में है। ऑल द साइड्स आर सेम। ठीक है, एरिया ऑफ वन फेस की अगर हम बात करें तो दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारे पास टीएस से क्या आएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। जैसे आपके पास क्यूबॉइड में था वैसे यहाँ पे सब जगह हमारे पास एल इंटू एल, एल इंटू एल, एल इंटू एल, सब में ही सारे फेसेस में आ रहा है, तो 6 टाइम एल स्क्वायर आपके पास आएगा। ठीक है, यूनिट समथिंग स्क्वायर यूनिट में आएगा, जो भी आएगा, चाहे वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो चाहे मीटर स्क्वायर हो, वो हम क्वेश्चन पे देखेंगे क्या है वो। ठीक है, सिमिलरली फोर्थ वन इज एल एस से और पेंटिंग क्यूबॉइड में वी टॉक्ड अबाउट सराउंडिंग की बात हो रही थी हमारी। ठीक है बेटा, लाइक दिस यू कैन सी लाइक दिस सराउंडिंग। तो क्या माइनस करेंगे, टॉप एंड बॉटम। ओके, टॉप एंड बॉटम को माइनस करके वी हैव CSA और LSA इज इक्वल टू 6L स्क्वायर माइनस 2L स्क्वायर। 4L square. Yes, I'm not writing here 4L square directly. You know why? आप डायरेक्टली यूज करते हो, लर्न करते हो, वो चीज आपको भूल भी सकती है, बट ऐसे आपको कभी नहीं भूलेगा कि हमारे टोटल 6 थे, उसमें से हमने टॉप एंड बॉटम को माइनस करना है, तो इट विल बी 4L स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो दिस इज एरिया। इसको क्या एक्सक्लूड कर रहे हैं, आपको लिख लेना है यहाँ पे, एक्सक्लूडिंग Top and bottom. या प्लीज राइट डाउन। इसकी रिवीजन करोगे, एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम। ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए है, क्वेश्चंस में आपको इमीडिएट समझ आ जाएगा कि हमने टॉप एंड बॉटम को नहीं इंक्लूड करना, सराउंडिंग की हमने कुछ पेपर लगाना है, सराउंडिंग पे हमने उसको डेकोरेट करना है, तो फिर वी विल बी टॉकिंग अबाउट CSA। ठीक है, yes, time is over. Write down the last formula, volume. Okay, volume of cube. Once we have container, cubical container, that will be equal to L into L into L, just like in cuboid. जैसे हम क्यूबॉइड में L into B into H करते थे, इसमें सारे की सारे जो है वो L है, that is equal to cubic यूनिट। क्यूबिक यूनिट्स वो देखेंगे हम, क्यूबिक सेंटीमीटर है या फिर मिलीमीटर है या फिर मीटर क्यूब है, व्हाटएवर, जैसी डायमेंशंस होंगी। ठीक है बेटा, चलो ये टाइम इज अप बेटा, प्लीज रिवाइज टिल हियर, वी विल बी राइटिंग मोर फॉर्मूलाज नेक्स्ट टाइम एंड क्वेश्चन।